once again I am back. My name is Zurai and I am here today at Cradle Talk powered by Cradle Fertility Center. And I have Dr. Hani Qureshi with us. Ma'am, once again welcome to our show. And now the question, that is a very common question you must be answering for a pretty long time, that is, could PCOD decrease the chance of pregnancy? Yes, of course. Like PCOD is a very common term. We often go through with this name, but the name is misnomer. The name is polycystic ovarian disease, but actually it's a hormonal imbalance in a woman's body. What happened in that there is a irregular or imbalance of the female's hormone, and there is a increased percentage of the male hormone in a woman's body. So because of this imbalance क्या होता है कि द नेचुरल जो ओवुलेशन जो फीमेल्स के होते हैं रेगुलरली एवरी मंथ वो नहीं होता है. ओवुलेशन बिकम्स इरेगुलर एंड इफ देयर इज नो ओवुलेशन देयर इज अ लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी. And the ovulation becomes irregular. Sometimes in some months it happens, sometimes it's not, and some of the women are totally becomes anovulatory. And apart from that, there are other symptoms also arises because of this hormonal imbalance, like the woman has a tendency to get weight, and there will be an unwanted facial hair in the woman's body. All over the body hair are increase in the numbers. There will be oily skin, acne, and the common problem which women face is the infertility. So these all symptoms constitute the word PCOS, polycystic ovarian syndrome. So women suffering from the PCOD often face the problem in conceiving. Even up to 70% of the women with PCOD faces this problems to get difficulties in getting pregnancy. Okay. और एक बात आपको पूछना था मेरे को, that what is the best age to get pregnant if you have PCOD? See, a woman is always born with definitely numbers of eggs. ये एग्स जो होते हैं ना, जब हम लोग पैदा होते हैं या बॉर्न होते हैं तो ये डेफिनेटिव इन ईच मंथ जब से हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से हर महीना एक एग रिलीज होता है, मैच्योर होता है, एंड सम ऑफ द एग्स आर डिस्ट्रॉय और ये होते हैं. तो टोटल अराउंड 400 एग्स जो होते हैं जो वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव पीरियड लाइक फ्रॉम 15 to 45 ईयर्स इफ आई से ये खत्म हो जाता है. बट द बेस्ट एज इफ यू से जहाँ पे वुमेन अपनी फर्टिलिटी के पीक पे होती है वो है 20 to 30%. अच्छा, 30 के बाद से 30 to 35 से ये जो फर्टिलिटी होती है, द नंबर ऑफ एग्स एंड द क्वालिटी स्पेशली ये डिक्रीज होने लगते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होने लगते हैं. ये सिर्फ पीसीओडी नहीं, दिस इज द एज रिलेटेड. इन वुमेन हु आर पीसीओडी और सफरिंग फ्रॉम द पीसीओएस, उनमें पीसीओडी की वजह से एग को क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आने लगता है. लाइक उनकी जो आउटर वाल है जोना पेलोसिडा वो थिक होने लगती है, एंड द अदर साइटोप्लाज्मिक जो कि मैचुरेशन उसमें भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. ओवरऑल द साइट क्वालिटी इज ऑल्सो हैम्पर्ड इन केस ऑफ द पीसीओडी. But the fortunate thing about the PCOD that most of the women, around 2/3 of the women will conceive with some medicine, ovulation induction जिसको हम लोग बोलते हैं. It is not necessary that every woman of PCOD needs IVF for their conception. अच्छा, आपने तो IVF mention कर दिया. So my next question is, what is the success rate IVF treatment among the PCOD patients? See, PCOD is one of the commonest reason for infertility. If you say every other woman, if we say he is suffering from the PCOD and this hormonal imbalance, but if the women's में अगर PCOD है, other factors like tubal factor and the factors from the male partner, uterus में कोई factor नहीं है, तो PCOD एक ऐसा disease है जिसमें IVF की सक्सेस सबसे ज़्यादा होती है. If other factors like I said कि उसकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, मेल पार्टनर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इट इज अ डिजीज विच इज वेरी द सक्सेस ऑफ द IVF इज वेरी गुड इन दिस PCOD पेशेंट्स. Would the new sperm retrieval technique put an end to the issue of male infertility?
new sperm retrieval technique like TESA and PESA came around 15 to 20 years back. ठीक है. Previously जब मेल्स को जैसे कि सीवियर मेल फैक्टर जब होता था तब उनके पास डोनर सीमेंस को लेके और कोई ऑप्शन नहीं होता था. लाइक सीवियर मेल फैक्टर में जैसे हम बोल सकते हैं कि ओलिगोएस्टिनोट्रेटोजिस्मिया, मतलब कि जहाँ पे सीमेन में स्पर्म का काउंट भी कम है, उसकी क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी भी कम है, तो ये सीवियर मेल फैक्टर कहता है. जहाँ पे स्पर्म काउंट्स लाइक ऐसे लेस देन 5 मिलियन पर ml जैसे होते हैं. तब क्या होता है, और जैसे कि मैंने बोला क्रिप्टोस्पर्मिया, जहाँ पे स्पर्म जो हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर से नहीं दिखते हैं, नॉर्मली नहीं पाए जाते, 1 या 2 स्पर्म हमको नॉर्मल सीमेन में मिले, या फिर टोटली एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एंजियोस्पर्मिया. इस तरह के जो ग्रुप ऑफ मेल्स थे वहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी आना पॉसिबल नहीं था अराउंड 50 to 20 ईयर्स बैक. फिर आईवीएफ की एक जो टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दिस केम अराउंड 2000. ठीक है. जब ये टेक्निक हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक में आई, तब ये जो सीवियर मेल फैक्टर हैं इनको ट्रीटमेंट करना हमारे लिए काफ़ी आसान सा हो गया. एंड अराउंड 40 to 50% ऑफ द मेल्स होते हैं जो अपना स्पर्म से इस टेक्निक के द्वारा फादर हो सकते हैं. लाइक जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स होते हैं जैसे कि टेसा और पेसा. टेसा मीन्स होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन. ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो स्पर्मिक मेल है जिनके इजैकुलेट पे तो स्पर्म नहीं है, बट देयर इज अ चांस टू गेट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस. इसीलिए हम लोग एक पतला सा नीडल से वो स्पर्म को हम लोग टेस्टिस से निकाल सकते हैं, और वो एक ही स्पर्म से ICSI बोल के जो टेक्निक है उसको हम उस साइड में इंजेक्ट कराकर वी कैन फॉर्म द एम्ब्रियोज. तो अराउंड 40 to 50% ऑफ द मेल जो आर सफरिंग फ्रॉम द सीवियर मेल फैक्टर, लाइक आई सेड, they get benefited by these techniques. So it's probably helped us a lot.